Good morning, students. In my previous video, we have introduced equation of plane progressive wave as well as different types of wave like transverse and longitudinal wave. Now today, first of all, we will introduce few terms. As amplitude. Amplitude, you are familiar with it. That means this is the maximum displacement ऑफ पार्टिकल ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन. यानी अगर हम ये कहें पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशन के टाइम पर जब इसका ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, सो दिस वैल्यू इज एम्पलीट्यूड. वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय ए और आर, एनी सिंबल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय wavelength? Although you are familiar with this term, as the term indicate, that is wavelength, it means length of a wave. So how can we define it? It is the distance traveled by a wave during the time any one particle of the medium complete one vibration. Obviously about its mean position. So distance traveled by a wave during the time in which particle of the medium complete one vibration. So as we have taken the case of transverse wave, so if we have just drawn this is a transverse wave, so you can say here that this is complete wavelength. This is represented by lambda. So from the starting point of one wave to the end point, this is the length of the wave. We can also take it as distance between two crests or the distance between two troughs. So अगर हम इस तरीके से represent करें, this is also correct. It is also taken as distance between two crests or distance between two troughs. Similarly, अगर हम longitudinal wave के terms में बताएं, तो longitudinal wave में पहले एक compression region, फिर rarefaction region, यानी ये पूरी लेंथ आपकी वेवलेंथ है. अब अगर हम ये कहें द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेस्ड लेयर एंड टू रेयरफाइड रीजन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेस्ड लेयर्स एंड टू रेयरफाइड लेयर्स, दिस इज ऑल्सो wavelength. So these are different ways by which we can analyze what are the wavelength. How can we define wavelength? Then you can take as angular wave number. This is nothing, this is not a new term, but we have already done this concept. It is 2 pi times the number of waves then can be accommodated per unit length. So basically it is also called propagation constant of the wave. So it is 2 pi times the number of waves, right? Now this is angular wave number, not wavelength, wave number. Frequency, you know, this is reciprocal of time, and the basic concept we have introduced. Now characteristics of wave motion. देखिए characteristic जब हम स्टडी करते हैं, it is not a new point. जबकि wave motion से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो सब हम पॉइंट्स को characteristic फॉर्म में लेते हैं. So let's have a just review of all the points. It is a kind of disturbance which travel through a medium. It requires medium for its propagation. A material medium is essential. बेसिकली हम यहाँ पर बात जो कर रहे हैं वो मैकेनिकल वेव्स के लिए कर रहे हैं. सो मटेरियल मीडियम इज एसेंशियल फॉर मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि ईएम वेव्स में हमारे पास मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज नॉट मैंडेटरी. व्हेन अ वेव मोशन passes through a medium, particles of the medium only vibrate simple harmonically about mean position. So wave motion में क्या हो रहा है? Disturbance तो है. So particles of the medium vibrate simple harmonically about its mean position. Next point, there is a continuous phase difference among successive particles of the medium. With the medium, number of particles are there, they are vibrating about the position, so always there occurs some constant phase difference. Next, velocity of particle during vibration, it is different at different positions. Velocity of particle is different at different positions. कैसे? जैसे हमने ये कहा था कि अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, मेन पॉइंट पर वेलोसिटी 0,
and extreme point पर velocity mean point पर velocity maximum, extreme point पर 0, क्योंकि mean point पर velocity maximum है तो it will move in opposite direction, again velocity becomes 0. So velocity of the particle during vibration is different at different positions. Velocity of wave motion through a particular medium, यानी किसी एक particular medium में velocity of wave will be constant. Medium change होगा तो velocity change होगी, और एक particular medium में अलग अलग point पर velocity का magnitude vary करता है. So for one particular medium, velocity of wave motion is constant. The most important point, as disturbance, wave is a kind of disturbance, so you can say that energy and momentum, this is propagated along with the motion of the wave, but there is no transport of मीडियम, यानी मीडियम अपनी पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है और उस डिस्टर्बेंस को उस एनर्जी और मोमेंटम की फॉर्म में आगे ट्रांसफर कर रहा है. सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन. नाउ दीज आर द जनरल कॉन्सेप्ट. कई बार इस पर अगर नोट आ जाता है तो यू हैव टू राइट इट. नेक्स्ट, साउंड. When we will discuss about sound, there are particular frequency. Let first is audible range of frequency. Audible range, you know it. This is 20 hertz to 20,000 hertz or 20 kilohertz. Yani we people are able to hear these audible range. Infrasonic waves. Infrasonic waves क्या होती है? Sound having frequency less than 20 hertz. Sound having frequency less than 20 hertz, these are infrasonic waves. Ultrasonic waves, waves having frequencies greater than 20 kilohertz. So in 9th class you have studied that which creatures are emitting and recognize these infrasonic waves and which creatures can analyze or reflect these kind of ultrasonic waves. Now we are just taking a review of these concepts. As velocity of sound, when we take, as sound is propagating through any medium, so velocity of sound in general value, just we take it as standard value, this is 332 meter per second. And even this speed is much more than the speed of fastest car. यानी एक कार की मैक्सिमम स्पीड जितनी हो सकती है उससे काफ़ी ज़्यादा है. तो तभी अगर किसी कार का हॉर्न ब्लो होता है और वो फार डिस्टेंस पे है, देन व्हाट यू विल हेयर फर्स्ट, यू विल हेयर द हॉर्न ऑफ अ कार अप्रोचिंग टू यू बिफोर कार रीचेस टू अस. बिकॉज वाई बिकॉज साउंड इज ट्रेवलिंग फास्टर देन अ कार. सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड. एक और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, सुपरसोनिक स्पीड. सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड. सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस टर्म दैट अगर साउंड से ज़्यादा स्पीड से कोई बॉडी मूव करती है तो वो किस कैटेगरी में आ गई? सुपरसोनिक स्पीड. नाउ as when we discuss longitudinal wave. So longitudinal wave basically travel in the form of compression, then rarefaction, then compression, rarefaction. अब actually compression rarefaction में क्या हो रहा है? Compression and rarefaction में there is change in volume. medium की volume में चेंज हो रहा है. कंप्रेशन रीजन में वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, रेयरफैक्शन रीजन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, इवन डेंसिटी एंड प्रेशर भी चेंज हो रहा है. सो ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम. So basically what we are discussing here, usually that sound wave travel in the form of longitudinal wave only. Why it is not traveling in the form of transverse wave? Because as longitudinal wave travel in the form of compression and rarefaction, which involve change in volume, density, pressure of the medium, and air possess basically volume elasticity. Air molecules may have volume elasticity. So therefore you can say sound travel in the form of longitudinal wave.
अब अगर हम ये कहें कि ट्रांसवर्स वेव इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, इसका मतलब वो क्रस्ट एंड ट्रफ एयर मीडियम में सस्टेन नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी चेंज इन वॉल्यूम और डेंसिटी या प्रेशर की बात हो वो सिर्फ एयर मीडियम में ही हो सकती है और वो करस्पॉन्डिंगली कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन में हो सकता है, यानी क्रस्ट एंड ट्रफ एयर में डेवलप नहीं कर सकते हैं। So that's why sound wave travel in the form of longitudinal wave, not in the form of transverse wave. Now, after this, let me discuss few results. What are those results? You have not to derive it because derivation part you have done or you can do in the form of dimensional analysis. No further proof we are giving here. So speed of transverse wave on a stretched string. Speed of transverse wave on stretched string is V equal to under root of T upon M, where T is tension in the string and M is mass per unit length of the string. Similarly, speed of transverse waves in solids, यानी पहले केस में हमने स्ट्रिंग्स की बात की थी, अब अगर सॉलिड मीडियम है तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होगा, v अपॉन अंडर रूट ऑफ v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ईटा, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी अपॉन डेंसिटी। सो ईटा क्या हो गया, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, एंड रो दिस इज डेंसिटी of material. Now, speed of longitudinal wave in fluids. So this is V equal to under root of B upon rho. यानी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्लूइड्स में बल्क मॉड्यूलस एग्जिस्ट कर सकता है, सो B इज बल्क modulus of elasticity and rho is the density. So these are three results which you have to learn. In the coming derivation and numericals you can use these results directly. Next method, next concept that we are discussing, this is Newton's formula for velocity of sound in gases. Within it, this is very important derivation. First of all, you have to understand it, must be able to express in the language properly because theoretical concept is more than that of mathematical part. Newton, he has given one formula for velocity of sound in a gas. What is this? Under root of B upon rho, जो अभी हमने direct formula लिखा था, where B is bulk modulus of elasticity of gas and rho is the density of gas. Now we know that sound travel in the form of compression and rarefaction. So सबसे पहले जो समझना है इसमें कि न्यूटन हैज अज्यूम्ड दैट चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखिए कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन में जब भी कोई मोशन होगा तो उसमें किस क्वांटिटी में चेंज होगा, एक तो प्रेशर में चेंज होगा और एक वॉल्यूम में चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस। सो न्यूटन ने एक एजम्पशन लिया कि जब भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में चेंज हो रहा है तो जो भी चेंज प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस में हो रहा है, दिस इज अंडर वन पर्टिकुलर कंडीशन, और वो कंडीशन थी isothermal condition. Isothermal means temperature remains constant. So Newton assumed that change in pressure and volume of a gas when sound wave is propagated through it, this is isothermal. What does it mean? It means जब कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन रीजन में प्रेशर बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज आ गए। अब क्लोज आ गए जब मॉलिक्यूल्स, तो उस केस में जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग कंप्रेशन तो वो क्या होगी, लॉस्ट टू
सराउंडिंग्स। यानी कंप्रेशन में मॉलिक्यूल्स के क्लोज आने से कुछ हीट जनरेट होगी एंड दैट हीट विल बी लॉस्ट टू सराउंडिंग। किस रीजन में? कंप्रेशन रीजन में। एंड रेयरफेक्शन रीजन में क्या होता है? रेयरफेक्शन में मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट विल बी लॉस्ट इन द सिस्टम। यानी यहाँ सिस्टम के अंदर हीट क्या हुई? गेन हुई, जो सराउंडिंग को लॉस हो गई। लेकिन यहाँ जब मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट हो गए तो उसमें सिस्टम की एनर्जी ही कुछ कम हो जाएगी। सो दैट लॉस्ट एनर्जी, दैट लॉस्ट हीट विल बी this will be gained from the surroundings। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कंप्रेशन में जितनी भी हीट एक्स्ट्रा थी वो सराउंडिंग में चली गई ताकि सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रह सके। और रेयरफेक्शन में क्या हुआ? क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो वहाँ पर कुछ सिस्टम की एनर्जी कम हो गई और वो लॉस्ट एनर्जी कहाँ से मिली? सराउंडिंग से। वो लेनी क्यों पड़ी? ताकि सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। देखिए ये सब एक एजम्पशन है, एक रिजल्ट को प्रूव करने के लिए कुछ कंडीशंस एज्यूम की गई। सो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर सेम कांस्टेंट रखने के लिए कंप्रेशन रीजन में हीट लॉस हुई और रेयरफेक्शन रीजन में हीट गेन हुई। सो इसका मतलब अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ बी आई। आई स्टैंड फॉर आइसोथर्मल कंडीशन, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। अब इस एक्सप्रेशन से हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अंडर आइसोथर्मल कंडीशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बी आई, बल्क मॉड्यूलस। तो हमें एक रिजल्ट डायरेक्टली याद करना है दैट यू कैन लर्न इन केमिस्ट्री ऑल्सो, दैट आइसोथर्मल कंडीशन को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका रिजल्ट होता है पी प्रेशर वी वॉल्यूम। एक्चुअली इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू आर टी, यानी आर तो गैस कांस्टेंट होता है, अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। अब दोनों ही फैक्टर कांस्टेंट हो गए, इसका मतलब पीवी कांस्टेंट हो गया, तो इसीलिए आइसोथर्मल कंडीशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी फर्स्ट फैक्टर एज सच, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फैक्टर प्लस सेकेंड फैक्टर एज सच, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फैक्टर। ये रूल होता है डिफ्रेंसिएशन का, फर्स्ट फैक्टर कांस्टेंट ट्रीट करके सेकेंड फैक्टर का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फैक्टर एज सच एंड डेरिवेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फैक्टर, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हो गया 0। अब हमें रीअरेंज करना है, पी डी वी इक्वल टू माइनस वी डी पी। So this P can be written as minus V dP upon dV, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसी को रीअरेंज करेंगे, कैसे? dP डिवाइड बाय dV, और ये V फर्दर डिनोमिनेटर में आ गया। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आप रिकॉल करें कि जब हमने कॉन्सेप्ट किया था बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो उसमें क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस तो एक तरह से प्रेशर रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर ये जो डी वी बाई वी है दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये कंप्लीट रेशियो ये हम लिख सकते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, राइट? नाउ so from here now bi in this expression is replaced by p, pressure। तो velocity का expression क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ p अपॉन रो। सो न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने एक फॉर्मूला लिया और उसके बाद एक कंडीशन को चेंज किया, दैट ही हैज़ टेकन दैट वेन एवर साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, सो correspondingly this is occurring, that means corresponding to it change in pressure and volume is occurring at a constant temperature, that is under isothermal condition. So it means in order to keep temperature constant during compression, heat will be lost to the surrounding, and during rarefaction, heat will be gained from the surrounding. And mathematically, you have obtained here this particular result, that is under root of P upon rho. Now further, now
after this, let me discuss what is error in Newton's formula. Newton has explained that velocity of sound under isothermal condition is given by this one. Now P, what is P? This is h rho g, where h is 0.76 meter of mercury column. This is a standard value we are taking. Rho, this is 13.6 10 raised to the power 3 density of mercury. This is this much kilogram per meter cube. And G, you know, this is 9.8 meter per second square. What about this density? Let me take this density as rho dash, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में भी रो लिया हुआ है, तो हम इसको डेंसिटी ऑफ मर्करी को हम रो डैश ले लेते हैं. एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर. सो डेंसिटी ऑफ एयर की वैल्यू होती है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब इन सभी वैल्यूज़ को जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं, आफ्टर दिस वी हैव नो नीड टू शो ऑल द कैलकुलेशंस. डायरेक्टली जब हम इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो जो वैल्यू वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगा, दिस इज कम्स आउट टू बी 280 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर पर सेकेंड. बट experimental value of velocity of sound at NTP, it is taken to be 332 meter per second. यानी ये हम standard value लेते हैं. तो it means there is a big difference between the value obtained from the calculations as well as from the experiments. So there is some discrepancy. So this discrepancy appear in the form of percentage error. तो percentage error क्या होगा? Standard value minus obtained value divide by standard value multiplied by 100. तो यहाँ जो परसेंटेज एरर हुआ ये हुआ 16%. 16% is not a small error. This is a big error. It means there is some problem in Newton's formula, Newton's assumptions. So there need to be some correction. Now, in order to correct this error in Newton's formula, Laplace has given some correction. Laplace was a French mathematician. He explained the exact cause of discrepancy between theoretical value and experimental value of velocity of sound in air. So he pointed out that whatever assumption was considered by Newton, that is wrong. So क्या assumption ली थी? Isothermal condition. Newton has taken isothermal condition. Now Laplace will explain the cause, what is the problem in it. According to Laplace, change in pressure and volume of a gas when sound wave is propagated through it, this is not under isothermal but under adiabatic condition. See, यहाँ जितना भी कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, यू हैव टू राइट इट ऑल इन लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, लास्ट में जाके हम इसे मैथमेटिकल देंगे. सो देर इज अ रोल ऑफ दिस थ्योरेटिकल पार्ट विच आई एम स्पीकिंग. So Laplace, he has said that change in pressure and volume of a gas, this is not isothermal but it is under isothermal adiabatic condition. Adiabatic का मतलब क्या हो गया कि सिस्टम में चाहे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बट सिस्टम में हीट एक्सचेंज नहीं होगा. नो एक्सचेंज ऑफ हीट विल टेक्स प्लेस. दिस इज अ बेसिक पॉइंट दैट यू हैव स्टडीड इन adiabatic condition. Now what is the basic cause of it? This is because, what are the reason for it? ऐसा क्यों लिया गया? Because velocity of sound of a gas, this is very large. So pulses of compression and rarefaction follow each other so rapidly. यानी ये पल्स का जो टाइम चेंज होने का है, एक बार कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन देन कंप्रेशन देन रेयरफेक्शन, ये इतना फास्ट होता है, इतना रैपिडली होता है. No time left for exchange of heat among themselves or with the surrounding. This is a very important point. I am repeating. Velocity of sound of a gas is quite large. So pulses of compression and rarefaction, they follow each other so rapidly that no time left for एक्सचेंज ऑफ हीट. किसके साथ? ना तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में आपस में, और ना ही सराउंडिंग्स के साथ. सेकेंड पॉइंट, गैस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. गैस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट.
So it does not allow free exchange of heat between compressed layer, rarefied layer and surroundings. यानी इसमें किसी भी पॉसिबिलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज हो पाए. सो एडियाबैटिक कंडीशन आर मोर करेक्ट बिकॉज दे आर एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट इन अ बेटर वे. सो क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा है जिससे कि कोई भी एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि इतने फास्ट रेट पे कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन फॉलो करते हैं ताकि देर इज़ नो टाइम लेफ्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट. और दूसरा रीज़न क्या मिला कि गैस तो एक्चुअली बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. सो इट डज नॉट अलाउ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग्स एज वेल एज विद द system, that is with the compressed and rarefied layer. So it means when no heat exchange is possible when sound wave is propagated through a gas. So what does it mean? इसका मतलब क्या हुआ कि compression region में जो भी हीट प्रोड्यूस्ड हो गई उससे सिस्टम का टेम्परेचर रेज हो जाएगा. और रेयरफेक्शन में क्या होगा, क्योंकि पार्टिकल्स दूर हो गए, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन इसमें सिस्टम में हीट यहाँ पे लॉस्ट होगी जिससे कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा. सो टेम्परेचर चेंज होना कंडीशन नहीं है, बल्कि सिस्टम और सराउंडिंग का आपस में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए. तो ये सारा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें हम रीज़न दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे सिस्टम में हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रही, इंस्टेड ऑफ इट टेम्परेचर चेंज इज पॉसिबल. नाउ हियर कंडीशन इज एडियाबैटिक. सो अंडर एडियाबैटिक कंडीशन what is the equation? PV gamma equal to constant, where this gamma, this is taken as the ratio of principal specific heat of gas. Cp क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट P, P फॉर प्रेशर. एंड Cv क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. यानी गामा इज टेकन एज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस अंडर डिफरेंट कंडीशन. नाउ दिस इज द बेसिक इक्वेशन. तो अब हम इसको फर्दर क्या करेंगे? लेट वी टेक इट इक्वेशन 2. सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2. सो नाउ अगेन यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. तो ध्यान से देखिए, पी फैक्टर एज सच किया और डिफरेंशिएशन हमें करना है वी गामा. अब वी की पावर n एक तरह से, यानी x की पावर जैसे हम n लेते हैं, जैसे हमारे पास रिजल्ट होता है d/dt x रेज टू द पावर n, तो n x n-1 ये लेते हो ना. तो यही चीज़ हम यहाँ लगाएंगे. गामा n की तरह मल्टीप्लायर में आ गया एंड v की पावर 1 लेस हो जाएगी, गामा से 1 लेस, v रेज टू द पावर गामा -1 इंटू dv प्लस v gamma as such differentiation of p pressure. तो यही मेन स्टेप है जिसको समझना है. प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फैक्टर एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फैक्टर. अब हमें सिर्फ इनको लेफ्ट साइड राइट साइड पे अरेंज करना है. p गामा v गामा -1 dv इक्वल टू -v गामा dp. तो यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं गामा p की. इसके लिए हम बाकी सब टर्म इसके डिनोमिनेटर में ले जाते हैं. तो ये हो जाएगा v गामा -1 dv. तो अब देखिए दिस इज -dp. v गामा को हम इसके डिनोमिनेटर में ले जाएं तो v गामा -1 डिवाइड बाय v गामा dv. फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया v गामा -1 माइनस गामा dv. गामा से गामा कैंसिल, यानी ये आ गया -dp अपॉन v -1 dv, जिसको मैं लिख सकती हूँ -dp अपॉन dv अपॉन v. इसको हम इसके डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं. ठीक है, ये फॉर्मूला किसका हो गया? ये हो गया बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है तो वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. सो इट इज अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, क्योंकि ये सारा एक्सप्रेशन हमने किसके अंडर किया है? आइसोथर्मल कंडीशन में किया है. तो यानी आइसोथर्मल कंडीशन जब हम दीज आर वी हैव टेकन अंडर एडियाबैटिक कंडीशन. आइसोथर्मल नहीं लिया, यहाँ हमने कौन से लिए? एडियाबैटिक कंडीशन. जब हमने आइसोथर्मल लिया था तो वहाँ पर प्रेशर P हुआ था, लेकिन एडियाबैटिक कंडीशन में गामा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया. अब देखिए
v वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ गामा p अपॉन रो। अब गामा p में गामा की वैल्यू होती है, ये हमें लर्न करनी है 1.41। तो अगर हम यहाँ पर इसको लिखें v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा अंडर रूट ऑफ p अपॉन रो, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, दिस इज़ 1.41। और ये जो वैल्यू है ये हम न्यूटन फार्मूले से ही जो वैल्यू सब्सटीट्यूट की थी ये हो गई थी 280, जो हमने एरर इन न्यूटन फार्मूला से निकाला था। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है 332.5 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ वेरी क्लोज टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो जो है 332 मीटर पर सेकेंड, जस्ट द डिफरेंस ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज एक्सेप्टेबल. So here under adiabatic conditions, now you can see that how mathematically we have explained all the concept. Basic concept क्या है कि adiabatic में there is no exchange of heat with the system and surroundings. So that's why this is giving you the correct result. So that's all for today. Just you have to give it a writing practice, because this Newton formula that we have discussed, it is quite very important. इस पर 3 mark to 5 mark का क्वेश्चन बन जाता है। अगर पूरा आ जाएगा there can be the question of 3 mark, there can be the question of 5 mark, but this question can be asked in parts also, 2 mark और 3 mark. कई बार इसमें अलग से एरर इन फॉर्मूला ही डिस्कस करा लेते हैं, या फिर कई बार डायरेक्टली लैपलेस करेक्शन पूछ लेते हैं, या क्या कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है स्टेट न्यूटन फॉर्मूला, पॉइंट आउट द एरर इन द फॉर्मूला and explain the correction given by Laplace. So in this way there can be different format of the question. So now just give it a writing practice thoroughly, as well as learn the language part which I have explained to you. Keep revising and keep learning. Thank you. Have a nice day.